Type number 5. Exercise 8.5. Now, type number 5 is based on linear differential equation. Now, linear differential equation can be of the type dy by dx plus py is equal to q, where p and q are only functions of x or constant. This is one of the conditions. Or we might have dx upon dy plus px is equal to q, where p and q are functions of only y or constants. So ये दो में से कोई भी एक कैटेगरी में होना चाहिए. Now we start with seventh sum. The question is, in the bracket it is x plus a, bracket close, dy by dx is equal to minus y plus a आ जाएगा. Now ये dx अगर यहाँ पे चला गया तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, तो y के साथ dx नहीं चलेगा and ये x के साथ dy नहीं चलेगा. So this can't go into what? Variable separable form. And यहाँ पे x and y मेरे वेरिएबल है, a जो है वो कांस्टेंट का काम कर रहा है. So it is directly yes, यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, but ये additional part है. So here it is not going in the type of what? Homogeneous differential equation directly. So let us think for linear differential equation, because order and degree is what? 1 and ये variable separable में नहीं जा रहा है. So dy by dx is equal to minus y plus a upon x plus a आ गया. So dy by dx is equal to minus y upon x plus a plus a upon x plus a. यहाँ पे क्या किया? Denominator part को split कर दिया and we get this as dy by dx minus, where it goes on other side तो ये हो जाएगा plus 1 upon x plus a into y is equal to a upon x plus a. So यहाँ पे आएगा this is of the form dy by dx plus py is equal to q, where p is equal to 1 upon x plus a, q is equal to a upon x plus a. So according to this, ये हो जाएगा. इसके बाद का स्टेप है I dot f, that is integrating factor. So ये हो जाएगा e integration of p dx. So e integration of 1 upon x plus a dx आ जाएगा. So यहाँ पे e आ गया, ये 1 upon x जैसा है तो ये हो जाएगा log of mod of x plus a. And यहाँ पे अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा which is 1. तो अपॉन 1 लिखा या ना लिखा फर्क नहीं पड़ेगा. And over here the by default base is what? e. तो अगर इसका बेस एंड टर्म का बेस, मतलब log का बेस एंड टर्म का बेस अगर सेम है, then your answer for this is what? x plus a. अच्छा कैसे? a raised to log x to the base a is equal to क्या आएगा? x. क्योंकि यहाँ पे it is counted as what? log of mod of x plus a to the base e. ये बेस और ये बेस सेम है तो आंसर इज दिस वाला पार्ट. ये और ये सेम था, आंसर x था, तो यहाँ पे x plus a आ जाएगा. दिस इज माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू. एंड आफ्टर दिस आई राइट द सॉल्यूशन ऑफ द equation is given by y into integrating factor is equal to integration of q into I dot f dx plus c. So y into ब्रैकेट में ये हो जाएगा x plus a is equal to integration of, यहाँ पे आ जाएगा as a upon x plus a into, इधर आ जाएगा x plus a dx plus c.
So ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल. In the next step we have y into x plus a is equal to a बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आ गया प्लस c. So y into ये हो गया x plus a is equal to a, ये हो जाएगा x plus c. And last में लिखेंगे therefore y in the bracket x plus a is equal to ax plus c, which is the solution of the given differential equation. So यहाँ पे with this the seventh sum is done. We make a note of this part. Now we'll start with the next question. That is question number 4. It goes as x plus y in the bracket dy by dx is equal to 1. ऐसा नहीं है. Now one thing is very clear. ये ब्रैकेट है, मतलब dy इसके साथ भी जाएगा, dy y के साथ जाएगा. y के साथ जाएगा तो चलेगा, बट x के साथ dy नहीं. और यहाँ पे ये जो अपॉन में dx है वो यहाँ पे जाएगा तो चल जाएगा, बट ये y के साथ dy चलेगा, बट x के साथ dy नहीं चलेगा. So this can't go in what? Variable separable form. तो ये ऑप्शन क्या है? Now इधर दिख रहा है यहाँ पे this order and degree of this is 1. This is मुझे दिख रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही है. So we can write it as dy by dx, बट ये x plus y के साथ है. So dy by dx is equal to, अगर 1 upon x plus y लिखा, yes, then our purpose is not solved yet. क्योंकि ये अपॉन में चला गया तो अभी इसके लिए क्या करना है, ये डायरेक्ट कंडीशन हमारे पास फिलहाल है नहीं. So let us think over here कि since it is not going in the which category, टाइप 3 में भी नहीं जा रहा है एंड टाइप 4 में भी डायरेक्टली नहीं जा रहा है, क्योंकि टाइप 4 का कंडीशन भी क्या है, dy by dx is equal to 1 upon x plus y. बट यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री सेम जैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि वो सेपरेट नहीं होने वाला है. सो नाउ लेट अस जस्ट थिंक दिस वे. ये हो गया मेरा x plus y is equal to 1 upon dy by dx. So ये हो जाएगा x plus y is equal to 1 upon dy by dx is same as dx upon dy. So इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे, dx upon dy is equal to x plus y. So यहाँ पे अभी since ये dx upon dy है, so we have that as dx upon dy. उसके बाद आता है प्लस px के टर्म्स में होता है. px के टर्म्स में मतलब ये x वाला टर्म इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू व्हाट, y. क्योंकि जब ये फॉर्म में होगा तो वी राइट ओवर हियर दिस इज ऑफ द फॉर्म dx upon dy plus px is equal to q, where p is equal to -1 and q is equal to y आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज इक्वल टू e raised to इंटीग्रेशन ऑफ p dy आ गया, e raised to इंटीग्रेशन ऑफ -1 dy. सो e raised to, ये माइनस बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy, ये हो जाएगा e raised to -1. सो ये हो गया मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू. Now once I got this as my integrating factor, after this we say the solution of the equation is given by x into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dy plus c. And according to this ये हो जाएगा x into e raised to -y is equal to integration of
ये हो जाएगा y into e raised to minus y dy plus c. So ये हो गया x into e raised to minus y is equal to, अच्छा ये क्या आएगा, y is algebraic e raised to minus y, मतलब ये हो गया exponential term. So this is u into v rule, and u into v rule of integration क्या आएगा, it is first minus what, identity. What does that mean? ये हो जाएगा first term integration of second, फिर आएगा यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इधर आ जाएगा डी बाई डी, एंड लास्ट में क्या आएगा प्लस. ये हो गया x into e raised to minus y is equal to y इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus y, तो ये हो जाएगा e raised to minus y upon minus 1 माइनस, ये हो गया इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा 1 into इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus y, तो ये हो जाएगा e raised to minus y upon minus 1, और इधर आ गया dy plus c. सो ये हो जाएगा x into e raised to minus y is equal to, ये माइनस साइन इसके साथ, तो माइनस y into e raised to minus y, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus y dy plus c. So x into e raised to minus y is equal to minus y into e raised to minus y plus इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus y, ये हो जाएगा e raised to minus y upon minus 1 plus c, and according to this ये हो जाएगा x into e raised to minus y is equal to minus y into e raised to minus y minus e raised to minus y plus c, and इसी को अरेंज करके भी लिख सकते हैं x into e raised to minus y plus y into e raised to minus y plus e raised to minus y is equal to c. ये कंडीशन लिखा तो भी चलेगा, एंड इसके बाद भी से कि therefore x into e raised to minus y plus y into e raised to minus y plus e raised to minus y equal to c, which is the solution of the given differential equation. या फिर ये सेम चीज, ये जो माइनस e raised to y है, ये आई कैन से और करके भी लिख सकते हैं. It is x e raised to minus y plus y e raised to minus y plus e raised to minus y is equal to c है. इधर लिख सकते हैं डिवाइडिंग throughout by e raised to minus y, तो ये हो जाएगा x plus y plus 1 is equal to c upon e raised to minus 1. So x plus y plus 1 is equal to c into e raised to y आ जाएगा, and लास्ट में लिख सकते हैं therefore x plus y plus 1 is equal to c e raised to y, which is the solution of the given differential equation. So ये भी आंसर हो सकता है और ये वाला पार्ट भी आंसर हो सकता है. So right now we'll make a note of this part. Now we'll start with the next question, that is question number 5. So यहाँ पे question number 5 is y dx plus bracket x minus y square dy equal to 0. तब यहाँ पे ये y के साथ dx चलेगा नहीं चलेगा, एंड ये x के साथ dy भी नहीं चलेगा, मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल पे तो नहीं जा सकता है. आई कैन सी यहाँ पे y का पावर 1 है, x का पावर 1 है और ये y का पावर 2 है. सो दिस इज ऑफ नॉट ऑफ द सेम डिग्री एज वेल. सेम डिग्री भी नहीं है, मतलब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं हो सकता है. सो नाउ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज व्हाट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यस व्हाट इज द कंडीशन, इधर ये होना चाहिए dy by dx plus py is equal to q, या फिर dx upon dy plus px is equal to q होना चाहिए. So now let us just
सी ओवर हियर, अगर मैंने यहाँ पे लिखा y dx इज इक्वल टू, ये वो से या तो इधर आ जाएगा माइनस ब्रैकेट x माइनस वाई स्क्वायर और साथ में क्या आएगा dy। सो ये हो गया y dx इज इक्वल टू, यस ये माइनस हट गया तो माइनस x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और इधर ब्रैकेट और ये dy आ जाएगा। अच्छा अगर ये अपॉन में गया तो अपॉन में दो टर्म नहीं चाहिए, सो दैट मींस मुझे dy by dx के जगह पे dx upon dy लाना होगा, क्योंकि अगर dy by dx लिखा तो अपॉन में दो टर्म हो जाएगा which I don't want। सो यहाँ पे इसलिए आ जाएगा dx upon what dy, ये वाला टर्म अपॉन में गया, सो दैट यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या y, डिनोमिनेटर कॉमन है, सो दिस बिकम्स dx upon dy इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस वाई आ जाएगा, इधर का एक y और एक y क्या आएगा कैंसिल, एंड इन द नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा dx अपॉन dy प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू y आ जाएगा। सो dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन y और इधर क्या आएगा x इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा y, एंड आफ्टर राइटिंग दिस यस ये आ रहा है ऑर्डर एंड डिग्री इज 1, dx upon dy plus px is equal to q, where p and q are only functions of either constant या फिर y का function। yes correct, so यहाँ पे लिख सकते हैं this is of the form dx upon dy plus px is equal to q, where p is equal to 1 upon y and q is equal to y आ जाएगा। सो यहाँ पे इसके बाद आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन ऑफ p dy, e इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon y dy, e इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon y log of mod of y हो जाएगा, एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बेसिस क्या आएगा e। सो ये हो गया, टर्म का बेस एंड लॉग का बेस सेम है तो आंसर इज व्हाट y आ जाएगा। तो ये कैसा है a रेज टू log x टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू क्या आएगा x। सो यहाँ पे ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू। सो हियर वी कैन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू इज इक्वल टू, तो मिल गया y। सो यहाँ पे लिख सकते हैं द सॉल्यूशन of the equation is given by x into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dy plus c। so x into ये हो गया y is equal to integration of, यहाँ पे है y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू भी y है dy plus c, ये हो जाएगा xy is equal to इंटीग्रेशन ऑफ y square dy plus c, xy is equal to इंटीग्रेशन ऑफ y square तो ये हो जाएगा y cube upon 3 plus c, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं therefore xy is equal to y cube upon 3 plus c, which is the solution of the given differential equation। So with this question is done. We make a note of this one. Now we'll start with the next question, that is now from the miscellaneous part। Now miscellaneous में से जो टाइप नंबर 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आ रहे, सो हियर इट इज मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 8 आ जाएगा, उसका रोमन नंबर 4 आ गया एंड उसका क्वेश्चन नंबर 5। सो द क्वेश्चन ओवर हियर इज सॉल्व बोला मतलब इट इज रिलेटेड टू व्हाट इंटीग्रेशन पार्ट। अच्छा सॉल्व व्हाट द डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज दैट डिफरेंशियल इक्वेशन,
इट इज y dx दिया है माइनस x dy दिया है इज इक्वल टू माइनस log x dx दिया है. So now over here, if you see, we can also write this as y dx minus x dy plus log x dx is equal to 0. इस तरह भी लिख सकते हैं. And since यहाँ पे भी dx है, इधर भी dx है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं dividing throughout by dx. तो ये हो जाएगा y dx upon dx minus x dy upon dx plus log x dx upon dx is equal to 0 upon dx. So ये और ये कैंसिल, तो इधर y आ गया माइनस x dy by dx आ गया प्लस ये और ये कैंसिल, इधर आ गया log x is equal to 0. So भैया यहाँ पे दिख रहा है it as ये y हो गया प्लस log x हो गया इज इक्वल टू ये वाले टर्म को इक्वल टू के इस साइड लेके आ रहा हूं तो x dy by dx हो गया. So यहाँ पे मुझे ये टर्म मिल गया. Now I can see over here कि ये y के साथ dx था और x के साथ dy था, तो ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं होने वाला. तो आगे भी जाके ये वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्ट तो नहीं है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है x और y का पावर 1 है बट ये log x है. सो यहाँ पे सेम डिग्री भी नहीं आएगा क्योंकि ये लॉगरिथमिक है और ये अलजेब्रिक है. सो अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक का पावर्स हम सेम नहीं बोल सकते. सो इट कांट गो इन व्हाट टाइप नंबर 4 इज. सो नाउ नीड टू थिंक फॉर dy by dx है, मतलब ये x नहीं चाहिए, ये x नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडिंग थ्रूआउट बाय x. तो हमें यहाँ पे मिलेगा y अपॉन x प्लस log x अपॉन x इज इक्वल टू x dy by dx अपॉन x. ये और ये कैंसिल, सो ये हो गया y अपॉन x प्लस log x अपॉन x और इधर आ जाएगा dy by dx. तो इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं. ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस log x अपॉन x. सो ये हो गया dy by dx माइनस 1 अपॉन x टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू log x अपॉन x आ जाएगा. सो इसके बाद नाउ आई कैन से दिस इज ऑफ द फॉर्म dy by dx plus py is equal to q, where p is equal to minus 1 upon x and q is equal to log x upon x. So according to this ये बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है e इंटीग्रेशन ऑफ p dx. So e integration of minus 1 upon x dx. So e बार माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx. So e इधर माइनस साइन ये हो जाएगा log of mod of x आ गया. एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये माइनस साइन इधर पावर में चला जाएगा तो ये बन जाएगा log of mod of x raised to minus 1. एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बेस काउंट होगा एज log of mod of x raised to minus 1 to the base e. सो इसका बेस और इसका बेस सेम है तो आंसर इज x raised to minus 1. कैसे आया? a raised to log x to the base a is equal to क्या आएगा? x. एंड अकॉर्डिंग टू दिस ये बनेगा 1 upon x. ये क्या मिला? इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? The solution of the equation is given by, यहाँ पे आ जाएगा y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c. So y into ये बनेगा 1 upon x is equal to integration of, यहाँ पे आ गया है log x upon x, ये मेरा q का वैल्यू है.
दिस इज माय वैल्यू ऑफ q, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हमने log x अपॉन x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू है 1 अपॉन x dx प्लस c। सो यहाँ पे सिंस दिस इज द कंडीशन, सो इधर ये वैल्यू आ गया है एज log x अपॉन x आ गया इनटू 1 अपॉन x dx प्लस c। तो यहाँ पे अभी ये वाला पार्ट इंटीग्रेट करना है एंड इंटीग्रेशन में ये दिख रहा है मुझे log x into 1 मतलब log x और ये x square दिख रहा है। सो आई डोंट हैव डायरेक्ट u upon v rule for integration। सो यहाँ पे लिखेंगे for RHS part put log x is equal to क्या आएगा t, and since put log x is equal to t बोला तो इसको लिखेंगे as differentiating this with respect to x, तो ये हो जाएगा 1 upon x is equal to dt by dx। सो ये हो जाएगा 1 upon x dx is equal to dt। सो इधर मुझे दिख रहा है 1 upon x dx, ये तो dt बन जाएगा एंड ये भी यहाँ पे t बन गया, बट व्हाट अबाउट दिस x नाउ। सो यहाँ पे लिखने का कि सिंस log x is equal to t है तो इधर बाय डिफॉल्ट बेस e है, तो ये बनेगा e raised to t is equal to x, so we can say x is equal to e raised to t आ जाएगा। so in this case we say therefore ये बन जाएगा y into 1 upon x is equal to इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज रहेगा, ये log x की जगह पे t आ जाएगा, ये अपॉन x जो है उसके जगह पे e raised to t आ जाएगा और ये 1 upon x dx की जगह पे dt आ जाएगा प्लस c। सो दिस बिकम्स y by x is equal to integration of t into e raised to minus t। क्या लिखा यहाँ पे e raised to, ये t है ऊपर चला गया तो माइनस t हो गया dt प्लस c, एंड इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे y अपॉन x is equal to इंटीग्रेशन ऑफ uv रूल आ गया तो ये हो जाएगा t इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus t dt dt प्लस c आ जाएगा। So this is y upon x is equal to, ये t हो गया इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus t, तो इसका आंसर e raised to minus t अपॉन माइनस 1, इधर आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, इसका आंसर 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus t, इसका आंसर e raised to minus t अपॉन माइनस 1 और यहाँ पे dt प्लस c आ जाएगा। So this becomes y upon x is equal to, ये माइनस साइन इसके साथ तो माइनस t into e raised to minus t, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus t dt प्लस c, ये हो गया y upon x is equal to माइनस t e raised to minus t प्लस e raised to minus t अपॉन माइनस 1 प्लस c, ये हो गया y upon x is equal to माइनस t e raised to minus t माइनस e raised to minus t प्लस c। सो इसके बाद we can say ये हो गया y अपॉन x is equal to माइनस t के जगह पे आ जाएगा log x अपॉन ये e raised to minus t को मैं लिख सकता हूं अपॉन में e raised to प्लस इसको भी 1 अपॉन e raised to प्लस c, एंड ये हो जाएगा y अपॉन x is equal to माइनस log x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस c, एंड इसको हम बोल सकते हैं which is the solution of the given differential equation। So यहाँ पे with this question number 5 तो हो ही गया है, and same question that is miscellaneous exercise 8 Roman number 4 का question number 15 जो है it is exactly similar to this question, बस खाली एक पार्ट अलग है, that is ये स्टेप क्वेश्चन नहीं है, ये वाला जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन पार्ट। सो आई जस्ट राइट यहाँ पे एरो करके कि दिस पार्ट इस क्वेश्चन नंबर क्या है 15 का क्वेश्चन,
एग्जैक्ट ये क्वेश्चन है, एग्जैक्ट मतलब क्या था, ये माइनस यहाँ पे चला गया तो प्लस हो गया, एंड दिस बिकेम माय क्वेश्चन नंबर 15th ऑफ मिसलेनियस. सो 5th एंड 15th दोनों भी हो गया क्योंकि वर्किंग जो है दैट रिमेन्स व्हाट एग्जैक्टली सेम. सो विद दिस these two questions are done. We make a note of this part. Now, we'll start with the next question. That is question number 6. It says solve y into log y into dx by dy plus x minus log y equal to 0. So, यहाँ पे the question is y into log y dx upon dy plus x minus log y is equal to 0. ये कंडीशन दिया है. Now, to start with, यहाँ पे मुझे दिख रहा है इसका ऑर्डर 1 है, ये 1 है, बट साथ में लॉग वाले टर्म्स है, तो दिस कांट गो इन व्हिच कैटेगरी, होमोजीनियस में तो नहीं जाएगा. और यहाँ पे दिख रहा है ये y के साथ dx नहीं चलेगा, दैट मींस ये किस में दे गया, टाइप नंबर 3 में भी दे गया, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है. सो इट इज नॉट गोइंग इन टाइप 3 एंड टाइप 4 में भी नहीं जा रहा है. सो नाउ वी नीड टू थिंक फॉर, ये हो जाएगा y log y dx upon dy. फिलहाल के लिए ये वैल्यू आया इज इक्वल टू, अगर ये यहाँ पे चला गया तो ये बन जाएगा log y, क्योंकि ये माइनस था, इधर आया तो प्लस हो गया, और ये भी यहाँ पे आया तो ये माइनस हो जाएगा. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है dx upon dy है, तो ये वाले टर्म्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडिंग थ्रू आउट y into log y, तो ये हो जाएगा y log y dx upon dy divided by y log y is equal to log y upon y log y minus x upon y log y. ये और ये कैंसिल हो गया, तो इधर बचेगा dx upon dy. इधर भी log y कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1 upon y माइनस ये बन जाएगा x upon y log y. और इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा dx upon dy. ये माइनस वाला टर्म यहाँ पे गया तो बनेगा प्लस 1 upon y log y into x is equal to 1 upon y. ये कंडीशन आ गया. And now इसके बाद we can say this is in the form of dx upon dy plus px is equal to q, where p is equal to 1 upon y log y and q is equal to 1 upon y. उसके बाद आएगा यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e इंटीग्रेशन ऑफ p dy. सो e इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y log y dy. एंड यहाँ पे आई कैन सी 1 अपॉन y log y लिखा हुआ है. सो इन दिस केस वी कैन से ये 1 अपॉन y dy जो है, ये कंडीशन 1 upon y log y है साथ. Now since 1 upon y log y dy है, so for this part का integration
यस हमें यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे अगर आ गया पुट log y इज इक्वल टू अगर t हुआ तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y अगर आया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन y इज इक्वल टू dt अपॉन dy. सो 1 अपॉन y dy इज इक्वल टू dt हो जाएगा एंड ये बन जाएगा e इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y dy ये बन जाएगा dt एंड ये यहाँ पे दिख रहा है 1 अपॉन t जैसा. सो ये हो जाएगा e रेज्ड टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt. तो ये बन जाएगा log ऑफ mod ऑफ t एंड आफ्टर दिस ये बन जाएगा e रेज्ड टू log ऑफ mod ऑफ t टू द बेस e. ये बेस और ये बेस सेम है तो आंसर आ जाएगा t. कैसे? तो ये हो जाएगा a रेज्ड टू log x टू द बेस a इज इक्वल टू क्या आएगा x. सो अकॉर्डिंग टू दैट इधर आ गया t. ये है मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू एंड ये t क्या है? एज log y अगेन. सो यहां पे आ जाएगा आफ्टर दिस द सॉल्यूशन of the equation is given by x into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor साथ में dy plus c आ जाएगा. so x into ये हो जाएगा log y is equal to integration of यहाँ पे q क्या दिया है 1 upon y है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है log y है साथ में dy plus c. सो ये हो जाएगा x into log y is equal to ये हो गया. यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है यस ये फंक्शन है एंड ये उसका डेरिवेटिव. सो ये हो गया यहाँ पे क्या और इफ वी कैन से अगर ये टर्म को अच्छे से समझना है तो ये हो जाएगा log y upon y dy plus c एंड इधर लिखेंगे for RHS part put log y is equal to d. तो इधर आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा y. ये हो जाएगा 1 upon y is equal to dt upon dy. सो ये हो गया 1 upon y dy is equal to dt and according to that ये बन जाएगा यहाँ पे x into log y is equal to integration of ये 1 upon y dy ये बन जाएगा dt and ये बनेगा integration of t plus so x into log y is equal to integration of t ये क्या बनेगा t square upon 2 plus c. so x into log y is equal to log y the whole square upon 2 plus c. अच्छा ये कहां से आया क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है log y is t. सो ये t के जगह पे आ गया log y एंड उसका स्क्वायर एंड आफ्टर दिस we say therefore x into log y is equal to log y the whole square upon 2 plus c which is the solution of the given differential equation. So with this question is done. Now we have a very similar question, that is question number 17 of again miscellaneous exercise 8 Roman number 4 उसका 17th sum and the question goes this way y into log y dx upon dy is equal to log y minus x. Now एक छोटा सा printing error है in few of the textbook. If there is a printing error in your textbook, इधर शायद dy by dx print हुआ है. अगर dy by dx print हुआ है, you need to replace that or you need to change that part to dx upon dy in your textbook. ये कुछ textbook में printing error है. यहाँ पे dy by dx print हुआ है, उसके जगह पे dx upon dy लिखना है, and then only the sum can be solved. And this becomes your question number 17. इधर से ही ये आया है, खाली इक्वल टू के ये साइड पे ये दो टर्म्स को लेकर. सो यहाँ पे with this
question number 6 and question number 17. Both the questions are done. We make a note of this, and with this we will also end the session over here. See you in the next session with the next time. Thank you. Now, based on the question which you have seen in this session, you have one of the question from the miscellaneous as a homework. It is the 14th question, which says it is x plus 2y cube in the bracket. After that we have dy by dx is equal to y. So यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये y के साथ, मतलब ये y क्यूब है, उसके साथ dy जाएगा तो चलेगा, एंड ये dx अगर यहाँ पे गया तो y के साथ dx नहीं चलेगा. So this can't go in what? Variable separable form. उसमें तो नहीं जा रहा है. So टाइप नंबर 3 एलिमिनेट हो गया. अभी यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे y का पावर 3 है. So x और y का पावर सेम भी नहीं है. So ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है. So type 3, type 4 eliminated हो गया. So we have only one option left right now, that is type number what? 5. So type number 5 के लिए ये हो जाएगा dy by dx is equal to y upon x plus 2y cube. और upon में x plus 2y cube नहीं चाहिए. So we say in this case इसको लिखना होगा as x plus 2y cube whole divided by y is equal to dx upon dy. Rather than writing dy by dx और ये अपॉन में दो टर्म देगा, उससे अच्छा ये टर्म को अपॉन लो और ये dx by dy लिखो. And this becomes what? X upon y plus 2y cube upon y is equal to dx upon dy. So ये हो जाएगा यहाँ पे x upon y plus 2y square is equal to dx upon dy. अरेंज करके लिख दिया dx upon dy plus x upon y is equal to, sorry, ये यहाँ पे is equal to x upon y plus 2y square, and इसी को लिखेंगे as dx upon dy minus 1 upon yx is equal to 2y square. जैसे ये कंडीशन आया, yes, now we can say ये चला गया टाइप नंबर 5 में. And after this further part you all can solve by what? By considering this of the form dx upon dy plus px is equal to q. वो टाइप कंसीडर करो एंड फिर उसकी जो स्टैंडर्ड स्टेप्स है उस हिसाब से सॉल्व करना है. ठीक है. सो जस्ट फॉर रेफरेंस पार्ट इतना पार्ट लिख के दिया है. फर्दर यू नीड टू सॉल्व इट एज व्हाट? होमवर्क. सो विद दिस वी एंड द सेशन ओवर हियर. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन with the next time. Thank you.